welcome to the online classes of Standard 10. Today we are going to start our third chapter of geometry, and the name of the chapter is circle. Okay, so look at first point. Let's recall. You are familiar with the concepts regarding with circle like center, radius, diameter, chord, interior and exterior of a circle. So already from A standard you are studying the terms like center of the circle, radius of the circle, diameter, chord, interior and exterior of the circle. Okay. Also recall the meanings of congruent circle, concentric circle and intersecting circle. So look at congruent circles. So try to understand what is meant by congruent circle. If the radius of two circles are equal, then the two circles are called congruent circle. इसका मतलब हुआ अगर दो सर्कल है उनकी रेडियस इक्वल है तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं. ओके. नेक्स्ट टर्म है हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब अगर दो सर्कल है लेकिन उनका सेंटर कॉमन है, एक ही सेंटर है उनका, तो हम उन्हें कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल. एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरसेक्टिंग सर्कल. So you can see in this figure two circles are intersect to each other, so that's why they are called intersecting circles. So these are the information related with congruent circle, concentric circle and intersecting circles. Okay, now move to our next point. It is activity 1. Okay, so in this activity, in the adjoining figure, segment DE is the chord of a circle with center C. Segment CF perpendicular to segment DE. If diameter of the circle is 20, DE equals to 16, find CF. तो यहाँ पे हमें CF की वैल्यू निकालनी है. डायग्राम आप देख सकते हो. DE एक हमारा कॉर्ड है, CF उसे परपेंडिकुलर है, तो हमें CF की वैल्यू निकालनी है. तो चलेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. So look at the solution. So first of all write down given. So in given circle diameter is 20. हमें डायमीटर दिया है 20. So therefore radius क्या आएगी? आपको पता है radius is the half of the diameter. So if the diameter is 20, then radius is 10. So we write here radius equals to 10. अब आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि the perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord. मतलब कोई भी सर्कल हो, अगर उसके कॉर्ड पे हम सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द गिवन कॉर्ड. तो हमें पता है कि हमें कि वो जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. सो दैट्स व्हाई DF इक्वल टू EF इक्वल्स टू हाफ DE. ओके, क्या हो गया हमारा DF, हमारा जो कॉर्ड था DE उसके दो पार्ट हो गए. एक पार्ट हो गया DF और दूसरा पार्ट हो गया हमारा EF. तो DF और EF क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए एंड दे आर हाफ ऑफ द D. तो D की वैल्यू हमें पता है, D है 16, तो DF और EF कितनी आएगी उसकी हाफ, इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ओके, तो ये भी लिखा है हमने CF इज परपेंडिकुलर टू DE, so that's why angle CFD equals to 90 degree. So write down here in triangle DCF angle CFD equals to 90 degree. अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब मैक्सिमम टाइम हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? यस, वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. सो राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम. So we know that Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to base square plus height square. So that's why we write here DC square equals to DF square plus CF square. तो हमें यहाँ पे CF की वैल्यू निकालनी है, तो CF स्क्वायर को वन साइड में ले लो, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड में ले लो. तो वी गेट CF square equals to DC square minus DF square. Now put up the value of DC and DF. So we get 10 square minus 8 square. What is the square of 10? 100. And what is the square of 8? 64. So 100 minus 64 equals to 36. तो हमें मिल गया CF square equals to 36. तो हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो we get CF equals to 6 centimeter. So in this method
वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी ऑफ। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज का यूज किया। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये हमें पहली प्रॉपर्टी लिखनी है टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे जगह दी है वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। और बाद में हमने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी फर्स्ट एंड हो गई। तो अभी हम बढ़ते हैं एक्टिविटी सेकंड की तरफ। तो लुक एट एक्टिविटी सेकंड। इन द एडजॉइनिंग फिगर से QR is a chord. So you can see QR is a chord with center O, which is the center of the circle O. P is the midpoint of the chord QR. तो आप देख सकते हो यहाँ पे point P is the midpoint of chord QR. So if QR equals to 24, OP equals to 10, find the radius of the circle. तो यहाँ पे हमें QR मतलब हमें chord दिया है और हमें OP की वैल्यू दी है, हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। तो काफ़ी सिंपल सा ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कौन से थ्योरम यूज किए, हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, नाउ हम इसका देखेंगे सॉल्यूशन। लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ एक्टिविटी सेकंड। तो आपको पता है कि हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी है, तो हमने लिखा है यहाँ पे फाइंड द रेडियस। तो डायग्राम निकाली हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखो सॉल्यूशन, P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सो देयरफॉर देखो P मिड पॉइंट है, मतलब QP और PR कैसे आएंगे, सेम आएंगे। और वो कितने आएंगे, हाफ ऑफ द QR। तो QR हमें पता है QR कितना है 24, तो हमें QP और PR हमें मिल गए 12। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे। अभी देखो हमने एक प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। हमने एक्टिविटी फर्स्ट में भी हमने यही प्रॉपर्टी यूज की कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो यहाँ पे P पॉइंट P के पास जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, वो बना 90 डिग्री का। ओके, सो दैट्स वाई वी राइट इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ क्या मिला हमें, एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपको पता है वंस अगेन, सो 90 डिग्री है, मतलब हमें कौन सा थ्योरम यूज करना है, हम यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, सो इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू मिला हमें 100 प्लस 144। OQ स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिला 244। तो आपको पता है 244 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो दैट्स व्हाई OQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 244। तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट 244 इक्वल्स टू 4 इंटू 61। तो 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने, तो हो गया वो 2 रूट 61। तो हमें मिल गया OQ इक्वल्स टू 2 रूट 61। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी सेकंड। तो देखो बच्चों, आपके बुक में एक्टिविटी थर्ड भी है, तो एक्टिविटी थर्ड आपको खुद सॉल्व करनी है और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।